السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، اور تمام دشمن رسول غدار رسول جوتے کی نوک پر۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ میرے سر کے تاج ہیں، جو دیو کے بندے ہیں وہ جوتے کی نوک پر۔ آپ تمام حضرات نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کے مفتیوں کی حقیقت اس چینل سے آپ کو سننے مل جائے۔ وہابی دیوبندی اپنے کفر کو اپنے منہ سے اگل دیتے ہیں، بعد میں ان کو پھر جب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا تو گالیاں بکواتے ہیں، دھمکیاں دلواتے ہیں، گنڈے موالیوں سے بدتمیزی کراتے ہیں۔ جو ان میں اچھے اچھے پوسٹ والے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اس کو روکو کسی طرح سے۔ کوئی پولیس والا بن کے آتا ہے، کوئی داروغہ بن کے آتا ہے، کوئی کچھ بن کے آتا ہے، کوئی کچھ بن کے آتا ہے، کوئی گریجویٹ بن کے آتا ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو کام کر رہا ہوں انشاءاللہ میں آخری دم تک کرتا رہوں گا۔ مجھے کسی کی دھمکی سے کوئی ڈر نہیں ہے، بس تمام مومنوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات اس ناچیز کے لیے دعا فرمائیں، اور وہابیوں دیوبندیوں کے اندر جو زہر ابل رہا ہے، اور جو میں ان سے وہ زہر اگلواتا ہوں، بس اس کو آپ حضرات اس چینل سے سنتے رہیں۔ نور حسن رضوی نیٹ ورک ایسا چینل ہے جو ہمارے اوپر لگایا ہوا الزام میں انہی کے گلے میں ڈال دیتا ہوں، میں انہی کے گلے میں فٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو نور حسن صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ جی، آپ کون صاحب؟ میں ممبئی سے بول رہا ہوں۔ ممبئی سے؟ اچھا اچھا، آپ کا نام؟ میرا نام اقرار احمد انصاری۔ اسرار احمد انصاری؟ جی۔ اچھا اچھا، آپ کا مسلک؟ اہل حدیث۔ اہل حدیث، اچھا جناب، جی بولیے۔ یہ پوچھ رہا تھا آپ نے دین کا کیا یہ مذاق لگا رکھا ہے؟ کیوں سنی وہابیوں کا یہ سب جھگڑا لگا رکھا ہے؟ اچھا اچھا، تو آپ اہل حدیث کیوں بنے؟ جی اہل حدیث کیوں بنے آپ؟ بننے کیا، میں اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو۔ اچھا اچھا، آپ کے باپ اہل حدیث ہیں؟ ہاں۔ اچھا اچھا، اور آپ کے باپ کے باپ؟ زمانے سے اہل حدیث ہمارا خاندان ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ جھوٹ ہے یہ سب۔ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا بتائیے آپ۔ 150 سال پہلے تمہاری سند ہی نہیں تھی، تمہارا نام نشان ہی نہیں تھا۔ اچھا، جی تو عرب کے اندر کہاں سے آئے؟ جی، عرب کے اندر کس کا مسئلہ چلتا ہے؟ یہ تو سب وہابی دیوبندی جو ہیں یہ سب ابو جہل کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ نہیں، جب آپ اور صلی اللہ علیہ وسلم سنو گئے چھوڑ کے تو پہلے سن تو لیجیے۔ چھوڑ کے گئے وہی طریقہ انہوں نے اپنا رکھا ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ عالم ہیں نا؟ نہیں عالم نہیں، میں معمولی سا چھوٹا سا وکیل ہوں۔ اچھا، وکیل ہیں پیشے سے آپ؟ جی جی جناب، ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے اپنا نام کیا بتایا؟ نام بھول گیا جی۔ احمد انصاری۔ اسرار احمد انصاری صاحب۔ اچھا، عدالت میں کس لیے جاتے ہیں آپ؟ عدالت میں میرا پیشہ ہے، وہ کام ہے میرا۔ ہاں ہاں، کام ہے نا، وہ بھی ایک اچھا کام ہے نا، مگر کیا عدالت میں سارے فیصلے آپ سچے کرتے ہو کیا، اگر آپ حق پر ہو؟ فیصلہ میں کرنے والا کون؟ فیصلہ جو کرتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ لڑتے ہو نا کسی اپنے ایک جو آپ کا گراہک مان لیجیے، کسٹمر مان لیجیے میرا جھگڑا ہو گیا اور میں آپ کے پاس گیا کہ وکیل صاحب ایسا ایسا ہو گیا ہے، آپ میرا کیس لڑیں، میں نے ایک قتل کر دیا ہے، 50 لاکھ روپے دوں گا، 1 لاکھ روپے دوں گا، 2000 روپے دوں گا، 5000 دوں گا، جو بھی آپ کا مطلب اس سے سودا ہو جائے، اور آپ اس کو بچاتے ہیں؟ بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے ہیں؟ بالکل، مگر جھوٹ سب جھوٹ سچ سب بولتے ہیں آپ وہاں عدالت میں کھڑے ہو کے، اور گیتا پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں، قرآن پر بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اس کا دین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سب ہو گیا کام۔ جی، اس کا دین کا کوئی مطلب نہیں ہے،
اچھا، دین سے کوئی مطلب نہیں ہے؟ دین میں کہاں لکھا ہے کہ کسی مفاد کے لیے چند پیسوں کے لیے بک جاؤ اور کسی قاتل کو جو ہے بری کرا دو؟ ارے وہ ہم نہیں کراتے ہیں، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ تو بہت پہلے سے چلا رہا ہے، وکالت نہیں کرے گا تو کون چیزیں کرے گا؟ ایک پڑھا لکھا قابل آدمی چاہیے اس کو، جو گناہ گار ہے یا جو سامنے کھڑا ہے۔ بہرحال آپ نے کہا کہ میرے باپ دادا پردادا یہ سب اہل حدیث ہیں، یہی کہا تھا نا وکیل صاحب؟ اچھا، مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو پرکھے ہیں، جو بزرگ ہیں، مان لیجیے آپ کے اگر باپ بھی جو ہے وہ اہل حدیث ہیں، تو آپ کے جو دادا پردادا ہیں وہ 100% سنی حنفی بریلوی ہم سنی مسلمانوں کے عقائد کے تھے۔ ہو سکتا ہے، ہم اس میں ہو سکتا حضرت بھائی جان وکیل صاحب، یہ ہو سکتا تو چلے گا ہی نہیں، کیونکہ میں آپ ہی کے منہ سے انشاءاللہ ابھی ثابت کراؤں گا۔ پیشے سے وہ آپ وکیل ہیں، ٹھیک ہے، پیشے سے آپ وکیل ہیں، میں آپ سے کیا بولتے ہیں باحث و مباحثہ اتنا نہیں کر سکتا، مگر الحمدللہ آپ کے منہ سے میں سچ اگلوا کے رہوں گا انشاءاللہ، اور میں اس لیے اگلواؤں گا کہ میں آپ کے سامنے کچھ شرط رکھ دوں گا، تو آپ کو مجبوراً دین کی خاطر، ہلو، حضور سے محبت کی خاطر آپ کو وہ سچ اگلنا پڑے گا۔ میرا مطلب کیا ہے آپ سمجھ نہیں رہے؟ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا بھائی جان، آپ نے کہا کیوں مسلمانوں میں جھگڑا کر رہے ہو، کیوں جو ہے تفرقہ پھیلا رہے ہو، آپ نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے یہاں بھی سن، ہلو، میں نے یہ بات صحیح بولی کہ غلط؟ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا، اگر میں نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ آپ کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو کال کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تفرقہ ہے یا معاذ اللہ دین کی بربادی ہے، ایسا کر کے آپ کا مشن ہے کہ میں معاذ اللہ مسلمانوں کے خلاف بولتا ہوں، ایسا آپ کا نظریہ ہے؟ آپ سمجھیے پوری دنیا اسلام کے خلاف ہے۔ اچھا، میرا پورا طریقہ اسلام کے خلاف ہے؟ آپ کا نہیں، پوری دنیا جو غیر ہے، سمجھے، جو غیر اسلام ہے وہ سارے اسلام کے خلاف ہے۔ آج دیکھنے کا کچھ دنیا میں مسلمان بدنام ہو رہا ہے، اور ہم خود اسلام کو بدنام کرنے کا کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں بھائی دیکھیے وکیل صاحب، پیشے سے آپ وکیل ہیں تو میرا مطلب ہے وہ حنفی ہے، اور جو بھی ہے ان کو اپنا جو وہاں عقیدہ ہے ان کو اپنا وہاں چلنے دو، میرا عقیدہ اہل حدیث کا میں وہاں چل رہا ہوں، آپ کو جہاں بریلوی ہے وہ آپ چلنے دو۔ تو ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا آپ نے؟ نہیں سنائیے، کیا فرمان بہت سارے ہیں آپ کے سنے ہوں گے۔ میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 طبقے ہو جائیں گے، ہے نا؟ یہ حضور کا فرمان ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک، ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ ماشاء اللہ جی، یہ حدیث پاک میں سن چکا ہوں۔ اچھا سن چکے ہیں جی، چلیے ماشاء اللہ، تب تو بڑی اچھی بات ہے، تو مجھے زیادہ سمجھانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اور ویسے بھی پیشے سے آپ وکیل ہیں، ہے نا؟ آپ تو ہاں وہ اب آگے سمجھا رہا ہوں نا میں آپ کو بھائی۔ سمجھے جناب؟ جی وہی میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتانے والا ہوں۔ جی دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں ایک فرقہ جو ہے وہ حق پر ہوگا، ایک جنتی ہوگا، باقی 72 کے 72 جہنمی ہوں گے، باطل ہوں گے، غلط ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس حق فرقے کی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو حق پر کہے گا، ہر فرقہ جنتی کہے گا، مگر جو جنتی ہے اس کی پہچان یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ہے نا، وہ جنتی ہے، وہ لوگ حق پر ہیں۔
ठीक, अब मुझे आप ये बता दीजिए कि कौन से सहाबी का ये अकीदा था जो देवबंदियों और वहाबियों का अकीदा है। वहाबियों और देवबंदियों का अकीदा ये है माज़अल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। बता दीजिए किस सहाबी का ये अकीदा था। आपसे पूछ रहा हूँ वकील साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो मैं तो आलिम नहीं हूँ। नहीं, आप आलिम नहीं हैं, पर आपको एक ठेस लगी कि शायद नूर हसन गलत काम करता है। ये गलत, देखो बदनाम हो रही है। अच्छा, दूसरी बात सुने, एक मिनट हजरत। देखिए वकील साहब, जब तक कि किसी चीज की तहकीक ना हो, है ना, तो किसी के तरफ से बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वही कह रहे हैं। हाँ, तो बदगुमानी मत रखो ना किसी से, जो आज जिसका अकीदा है वो चलने दो। मुझे तो तहकीक है ना वहाबियों देवबंदियों के ताल्लुक से, वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं बदगुमानी नहीं करता। हमें उनका तरीका हमको भी नहीं अच्छा लगता, उनको हमारा नहीं लगता। ये हुसैन करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वो हमें भी कहते हैं, लेकिन जो ठीक है उनको भी कोई कहीं से रिवायत होगी, मिली होगी, तभी वो अपने तरीके पे चल रहे हैं। वकील साहब, शायद आप मेरी बात को नहीं समझना चाह रहे, और आपको समझ, इंशाल्लाह मैं जरूर समझा के रहूंगा। आप तो कठहरे में खड़े होकर अदालत में मुकदमा लड़ते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने नबी का गुलाम हूँ, मैं अपने नबी की वकालत करता हूँ, मैं अपने नबी का वकील हूँ। ठीक है, मैं भी हूँ इंशाअल्लाह। देखिए, आप हो सकते हैं मगर आपकी जमात नहीं है। आप हो सकते हैं अनजाने में हो और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, आपको वहाबियों की हकीकत का इल्म ना हो। ठीक है, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। नहीं, जड़ तक तो इल्म मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत उठ बैठ है, जैसा थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ उनके बारे में। हाँ, तो कहते हैं कि हम जमात में लेके जाते हैं जो बेचारे। खैर, आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे वकील साहब? जो शराबी कबाबी थे, हम लोग ने उनको जमात में ले जाके बेचारों को नमाज पढ़ने वाला बनाया। मगर वो लोग अभी भी शराबी का बात। अच्छा, आप जमात वाले हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ, वो बताते हैं। अच्छा, नहीं गए अभी तक। देखिए, मैं जमात वाला नहीं हूँ, ठीक है। जो मिलते हैं बेचारे, जैसे आपसे बात होगी तो आप बताएंगे नहीं। हाँ, वकील साहब, असरार साहब, जिस जमात का आप नाम ले रहे हैं, तब्दीली जमात का, जो लोगों को तब्दील करते हैं, मुसलमान से काफिर बनाने की कोशिश करते हैं, मैं उस जमात से ताल्लुक नहीं रखता, मैं उस फिरके से ताल्लुक नहीं रखता। मैं जमात अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता हूँ, जिसकी पहचान आज के दौर में इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में सुन्नी हनफी बरेलवी के नाम से पहचानी जाती है। जो जमात पाकिस्तान में भी ये जमात सुन्नी हनफी बरेलवी के नाम से पहचानी जाती है, यानी दीगर ममालिक में भी हम लोगों को बरेलवी कहा जाता है। हमारी पहचान बरेली शरीफ से होती है, मसलक आला हजरत से होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अदर कंट्री के लोग भी अपने आप को बरेलवी कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। अच्छा, आला हजरत को कितने दिन हो गए जी? जी जनाब, आला हजरत को विसाल किए हुए 102 साल हो चुके हैं। 102 साल। आपने बताया कि हमारी पहचान आला हजरत से होती है, तो उससे पहले आपकी कोई पहचान नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में मोमिनों की, मुसलमानों की एक पहचान है। ठीक है, हर दौर में पहचान रही है। सहाबा इकराम के दौर में जब बदमजहबों की तादाद बढ़ी तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम से पहचाने जाते थे, जाने जाते थे। जब नहीं पहचान होती थी कि ये अपना है कि पराया है, मोमिन है कि मुनाफिक है, तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नाम लिया जाता था। अगर सामने वाला खुश हो गया तो मोमिन था, और उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, सिलवटें आ गई, चेहरा बुस गया, बदबूदार हो गया, तो सहाबा इकराम पहचान लेते थे कि यह हमारा नहीं है, ये बद्दीन है, समझे, मुनाफिक है। हर दौर में एक पहचान रही है जनाब। वकील साहब देखिए, जो जितनी बात मैं कहूंगा इंशाअल्लाह वो दलील और सबूत के साथ मैं आपको सब बताऊंगा। और हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी आपने नाम सुना होगा जी, ठीक है। उस दौर में उनके नाम से पहचाना जाता था। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, मगर शॉर्टकट में मैं आपको ले जाना चाहता हूं, ठीक है। और मसलक आला हजरत जो हम कहते हैं वो यूं ही नहीं कहते खामा। मसलक के माना है रास्ता। जिस रास्ते पर मेरे सहाबा थे,
جی میرے آقا کے غلام تھے، اسی راستے پر تابعین تبع تابعین، اسی راستے پر اولیاء کرام، سمجھے جناب، جی اسی راستے پر نیک مومن، بالکل اسی راستے پر میں شارٹ کٹ میں آپ کو نام بتا دوں، میرے غوث اعظم، میرے خواجہ غریب نواز، میرے صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ، میرے حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے حاجی علی بابا، مطلب دنیا بھر کے شارٹ کٹ میں ایک نام بتا دوں کہ جتنے اللہ کے ولی ہیں، جس راستے پر یہ سب لوگ تھے اسی راستے پر میرے اعلیٰ حضرت ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جس راستے پر ہیں، جو عقیدہ اعلیٰ حضرت کا ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد پائندہ باد. اب میں اب سن تو لیجیے وکیل صاحب، اب اعلیٰ حضرت کا راستہ کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا کیا ہے، وہی ہمارا عقیدہ، اسی راستے پر ہمیں. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اختیار عطا کیا ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے، وہی اللہ کے ولیوں کا عقیدہ ہے. صحابہ اکرام کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا کیا، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. تمام صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے خطبے پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے خطبے سکھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جی سمجھے؟ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شان و عظمت ہم کو بتائی، سکھائی. جو اللہ اور اس کے رسول کا نہ ہوا تو وہ ہمارا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا، ہے نا؟ جی. جو اللہ اور اس کے رسول سے ہی دشمنی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو کتنے بڑا مومن کہلائے، مومن نہیں ہے. وہابیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو؟ کس کی بات ہے اللہ سے سچی؟ کسی کی نہیں. بالکل. یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب معاذ اللہ خدا بھی کر سکتا ہے. وکیل صاحب پوائنٹ دھیان میں رکھنا، کیونکہ آپ وکیل صاحب ہیں اور پوائنٹ پر ہی وکالت لڑی جاتی ہے. پوائنٹ پر کرتا ہے وکیل، ہے نا؟ جی. اب انہوں نے جو یہ بات کہی ہے معاذ اللہ کہ جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب معاذ اللہ خدا بھی کر سکتا ہے، کہیے آپ کو درست لگ رہا ہے وکیل صاحب؟ نہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں، اللہ تو ہر چیز کو قادر ہے. دیکھیے آپ پھنس جاؤ گے، وکیل ہو آپ. میں گناہ بھی کر سکتا ہوں، اللہ کی وہ تعریف ہے کہ وہ گناہ سے پاک ہے، سارے ایپ سے پاک ہے. مگر جو یہ کہے اچھا بندے گناہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، میں تو گناہ مجھ سے ہوتے ہیں، میں خود گناہگار ہوں. دیکھیے بندہ گناہگار ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں کب انکار کر رہا ہوں. آپ نے اپنے آپ کو پہلے لیا، چلیے یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ کا یہ سمجھ لیجئے عاجزی اور انکساری کا ایک ٹاپک میرے سامنے آیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی عاجزی دکھائی اور یقیناً ہر بندہ اور میں اور آپ تو خیر حقیقت میں گناہگار ہیں، مگر جو اللہ کے ولی ہیں نا وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں. جی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سنیے، میں نے جو ابھی آپ کو یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر یہ تہمت باندھی کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے یا جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب معاذ اللہ خدا بھی کر سکتا ہے، جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے. تو اب میں آپ کو گنواؤں کہ جو کام اللہ کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے؟ بہت سارے نا. آپ کی آواز مجھے صحیح سے نہیں آ رہی ہے، تھوڑا مائک قریب کر کے بولیں وکیل صاحب. جی بولیے. ہاں
अब देखिए, मैं ठंडे दिमाग से सुनना वकील साहब, क्योंकि आप वकील साहब हैं, और पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगर कहीं हो सके मैं कहीं गलत बोलूं तो आप मुझे आगाह कर दें। जी आपकी शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने, अच्छा क्या क्या है? 1 लड़की है, 3 लड़के हैं। अच्छा, 1 लड़की है, 3 लड़के हैं। जी अच्छा, यानी 13 रहमतें आपके पास अभी मौजूद हैं। हाँ, 13 रहमतें। लड़की 10 रहमत लेके उतरती है और लड़का 1 रहमत। जी ठीक है, गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या माज़अल्लाह खुदा भी शादी करेगा या कर सकता है? नहीं नहीं, इन सब ऐसे तो पाक है वो। इन सब चीजों से पाक है ना। हाँ मगर जुमला क्या है, वर्ड क्या है कि जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब माज़अल्लाह खुदा भी कर सकता है। जो मक़दूरुल अब्द है वो मक़दूरुल्लाह भी है माज़अल्लाह। नहीं, ये तो हमने नहीं सुना कि ऐसा कहते हैं। आपने नहीं सुना वकील साहब, आपने अपनी दुनिया भर की पढ़ाई की है, दुनिया की पढ़ाई की है, आपने दीनी तालीम तो नहीं पढ़ी ना। थोड़ी बहुत बढ़िया है। तो जो मैं बता रहा हूँ, अगर वकील साहब ये गलत, वकील साहब तो जानता हूँ, कलाम पाक पढ़ा हुआ हूँ। हाँ वकील साहब, मैं एक बात कहूंगा बस, और मैं कुरान की तफसीर में नहीं पता, बस खाली एक बात कहूंगा कि कटहरे में खड़ा करके मुझे सजा दिलवा देना, फांसी पे चढ़ा देना, मुझे बीच चौराहे पे खड़ा करके तलवार से कत्ल कर देना आप अपने हाथों से, अगर मेरा बताया हुआ आपने हवाला गलत साबित कर दिया, और स्टाम्प पेपर पे लिख दूंगा, चाहे 500 का लेना चाहे 1000 का लेना, और मैं कह दूंगा कि वकील साहब पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। ये मेरे किए की सजा मेरे लिए है, ठीक है, ऐसा लिख दूंगा अगर आपने मेरा एक हवाला गलत साबित कर दिया। समझे वकील साहब? साबित करने के लिए फोन नहीं किया मैंने। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, पर आपने जो ये कही ना बात कि मुसलमानों को तिफरके में मत डालो, मुसलमानों को मत बांटो, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चाहे आप वकील होते या वकील से ऊपर जज भी होते ना, तो जो मुझे कहना है मैं वही कहता आपसे। देखिए, इंसानियत का तकाजा ये है कि अगर आपको इल्म नहीं है उस चीज का, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको तहकीक कराऊं, मैं आपको बताऊं। तो जो मेरा काम है मैं वो कर रहा हूं। आप अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप समझिए, सीखिए। अच्छा, हेलो जी, मैं आपकी सुनता हूँ आपकी रिकॉर्डिंग। अच्छा, यूट्यूब पर। जी, जो कोई फोन करता है आप उससे पहले मसला पूछते हैं, आपसे उसका सलाम नहीं लेते पहले? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अच्छा, देखिए देखिए, टॉपिक को मत घुमाइए, बिल्कुल भी टॉपिक को बिल्कुल मत घुमाइए। मैं नहीं जाना चाहता कहीं भी। वाला है, कोई भी मतलब का हो, मुसलमान ही करेगा ना, हिंदू मुसलमान करेगा। एक मिनट, क्या इस्माइल दहलवी को, जाकिर नाइक को, महराज रब्बानी को, तौसीफुर रहमान को आप मुसलमान मानते हो? मैं तो इसको फतवा नहीं देता, बता रही हूँ। तो फिर आप मेरे मामले में टांग ना अड़ाएं वकील साहब, अच्छा होगा, वरना मैं कर रहा था। हाँ देखिए, मेरा मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं किसी बदमज़हब बदअकीदों में रहने वाले का सलाम का जवाब नहीं देता। जो बदमज़हब उससे मोहब्बत रखता है, उन्हें मुसलमान मानता है, ठीक है, मैं उनके सलाम का जवाब नहीं देता हूँ। अच्छा, इस्लाम का एक वाक़या है हजरत। देखिए हजरत, कहीं जाइए नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए ना। नहीं, वही मैं समझाना जा रहा हूँ। देखिए, आप मत समझाइए। एक आदमी को खाना खिलाने के लिए बुला के लाए घर। कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो हजरत उमर फारूक आजम का वाकया नहीं सुना कि हजरत उमर फारूक आजम भी हजरत मौला अली या हजरत उमर फारूक आजम एक शख्स को बुला के लेकर आए थे। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का शायद ये वाकया है, ठीक है। उसके मुंह से कोई बदमज़हबियत की बात निकली, खाने से भगा दिया, भाग। समझे जनाब? खाने से भगा दिया। हाँ, तो आपके लिए आपके नबी का दीन मुकम्मल है कि पहले नबियों की जो शरीयत है, पहले नबियों का जो मामला है वो आपके लिए मतलब है? बोलिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, वो भी अपनी नबूवत नहीं चलाएंगे, बल्कि हमारे नबी की नबूवत को जो है आगे बढ़ाएंगे, हमारे नबी की नबूवत का प्रचार करेंगे, हमारे नबी की नबूवत का ऐलान करेंगे, आपके उम्मती बनकर रहेंगे। बिल्कुल। तो फिर मैं नहीं क्या कहना चाह रहा हूं। हजरत देखिए वकील साहब, देखिए पेशे से आप वकील हो भले ही,
मगर आप मुझसे इस मामले में नहीं बहस कर सकते हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ। नहीं, मैं बहस करने की कोशिश किया। मेरा मतलब ये है कि हम खुद दलील हो रहा है। खैर अच्छा, देखिए वो मुसलमान ही नहीं है यार जो नबी को माज़अल्लाह बुरा भला कहते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करते हैं, जो कहते हैं माज़अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इल्म गैब नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है माज़अल्लाह, कि कब्र में क्या होगा न उनको खुद अपना मालूम है न दूसरों का मालूम है माज़अल्लाह। क्या मुसलमान है वो, और उनको तुम मुसलमान समझ रहे हो यार वकील साहब, कितनी हैरत की बात है। आपने बताया ना कब्र में क्या क्या होगा, कुछ हालात बताए गए हैं। बताए गए हैं तो फिर इनकार क्यों? जिन लोगों ने इनकार किया, एक हजरत वो वकील साहब, जिन लोगों ने इनकार किया क्या वो मुसलमान हो सकते हैं? सवाल ही नहीं। देखो हाँ आए ना, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कहते हैं ना, जी जी वकील साहब, पत्थर की लकीर है, मिट नहीं सकती। जी 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 जी। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ वो पत्थर की लकीर भी मिट जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उससे ज्यादा मजबूत है, पत्थर की लकीर से ज्यादा, जो आपने फरमा दिया। उसमें जरा बराबर भी शक शुबा करना मुसलमान के लिए खतरा है। माशाल्लाह, वही मैं अपने नबी का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अभी हद्दे कुफ्र को नहीं पहुंचे, जो अभी बदमजहबियत में गिरफ्तार हैं, ठीक है, उन लोगों से मुलाकात हो तो सलाम ना करो। अगर वो बीमार पड़े तो उनकी इयादत ना करो, यानी उन्हें देखने मत जाओ, ठीक है। उनसे नरमी से बात ना करो, सख्ती से बात करो, तुरसरुई के साथ पेश आओ। किसने फरमाया ये? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये। अच्छा, तो आपको वाकया मालूम है वो कूड़ा फेंकती थी एक औरत छत से? जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुजरते थे, हाँ, एक औरत छत से उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, ऊपर से कचरा। क्या बार बार फेंकती थी? रोज कई बार का उसका वाकया था। एक दिन वो बीमार पड़ी, कचरा नहीं फेंका उसने, तो आप उसका घर गए उसके। एक मिनट, पहले मुझे ये साबित कर दीजिए कि क्या वो माज़अल्लाह बार बार फेंकती थी? हाँ, हमने ऐसा सुना है, हम बार बार सुना है आपने, मगर हकीकत है, हकीकत मालूम है। चलो एक बार फेंका उसने। हाँ, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तकबिल का इल्म भी है, और मेरे आका जानते थे कि ये बुढ़िया एक दिन ईमान लाएगी, और मेरे आका उसकी इयादत के लिए गए, और वो घबरा गई, डर गई, सोच रही थी कि मैंने इन पर कूड़ा डाला और शायद आज मैं बीमार हूं, पता नहीं क्या करेंगे। मगर उसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। क्या मेरे नबी उसको मारने गए थे क्या? नहीं ना, उसकी इयादत के लिए गए थे ना। मेरे नबी है अल्लाह के, मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह ताला ने उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, समझे। मगर हजरत उमर फारूक आजम का जलाल देखोगे क्या? हजरत उमर उसके, देखिए वकील साहब, आप पेशे से वकील हैं, मैं मानता हूँ। वकील साहब, सदी का मिजाज भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल हम रखते हैं। मोमिनों के लिए मैं नरम हूँ, मगर बदमजहबों के लिए गरम। मैं किसी बदमजहब से अच्छे से बात नहीं करता। मोमिनों के लिए गरम हूँ, झुका हुआ हूँ, एकदम मौम हूँ, मगर सिर्फ मोमिनों के लिए मौम हूँ। जब किसी बदमजहब से बात होती है तो मैं उससे अपने अंदाज में बात करता हूं। जिस तरह मेरे आका हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, समझे, एक दुश्मन से लड़ रहे थे, मगर पता है क्या किया उसने? दुश्मन ने, हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने उस पर पूरा काबू पा लिया था और उसको कत्ल कर देते, मगर उसने थूक दिया। जी जी जी, समझे। जी। तो हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने उसको छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि अब मेरा ये जाती मामला हो जाएगा। शायद ये मतलब उसने जब थूका तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जाती मामला समझ बैठे। वो लड़ाई दीन की थी, इसलिए इतने बड़े पहलवान को पछाड़ दिया, उसको काबू में कर लिया, समझे। हाँ, तो दीन का मामला अलग है और दुनिया का मामला अलग है। खैर, अगर वो उसको कत्ल भी कर देते तो वासिल जहन्नमी ही होता, क्योंकि दीन का गद्दार था। जी, था कि नहीं था?
हाँ वो तो दिन का गद्दार था। अच्छा ये बताइए वकील साहब, शॉर्टकट में मैं एक बात पूछता हूँ, आपको अपने वालिद साहब से मोहब्बत होगी जरूर शायद? जी बिल्कुल। हकीकत में? वालिद साहब गुजर गए हमारे। अच्छा वो गुजर गए, कितने दिन हुए? मुझे 15 साल। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आपके वालिद मर गए तो ये जुमला अच्छा लगेगा बुरा? हाँ थोड़ा सा अदब के खिलाफ है, नहीं तो अदब के खिलाफ है ना जी। देखिए जब एक आम आदमी के लिए अदब के खिलाफ है तो एक आलिम के लिए कैसा होगा? हाँ बताया ना, वही अदब के खिलाफ है। अदब के खिलाफ है ना। हाँ। अच्छा, अंबिया की बारगाह में बेअदबी कुफ्र है या ईमान? अंबिया की बारगाह में बेअदबी क्यों करेगा भाई? मैं बताऊंगा ना, आपके घर से बताऊंगा, आपकी घर की किताब से बताऊंगा, अहले हदीसों की किताब से बताऊंगा। नहीं हमारी किताब में ऐसा कुछ नहीं है। उठाइए तकबीरतुल ईमान। क्या लिखा है उसमें लिखा है माज़अल्लाह के हुजूर ने गोया ऐसा फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं भी एक दिन मिट्टी में मिलने वाला हूँ माज़अल्लाह। नहीं आप हयात है अपनी कब्र के अंदर। हम ये तो हमारा, देखिए ये तो हमारा अकीदा है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में हयात हैं, जिंदा हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिस्क पहुंचाया जाता है, ठीक है, उनको रिस्क अता होता है, ये तो हमारा अकीदा है। मगर वहाबियों ने अपनी किताब में लिखा माज़अल्लाह कि गोया हुजूर ने ऐसा फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं माज़अल्लाह। बताइए कितना सख्त जुमला है ये, है या नहीं? हाँ सख्त है वो। और ये अंबिया की शान में जो बेअदबी होती है ना, ये कुफ्र होती है, कुफ्र, जर्रा बराबर बेअदबी, जर्रा बराबर गुस्ताखी। और ये जर्रा बराबर नहीं, ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है। जब आप कह रहे हो कि ये अदब के खिलाफ है और एक आम आदमी के लिए भी बुरा लग जाएगा, तो क्या आप अपने नबी के लिए ये जुमला सुन सकते हो वकील साहब? नहीं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप वकील हो, आप पॉइंट पकड़ते हो, तो मैं आपको पॉइंट पकड़वा रहा हूं। हाँ वकील साहब जी, आवाज नहीं आ रही वकील साहब। हाँ चलिए, अब मुझे कुछ काम है, जरा ज्यादा वक्त आपका ले लिया मैंने। ज्यादा वक्त ले लिया आपका मैंने। अच्छा ठीक है, चलिए खैर, मैं बस वकील साहब एक ही बात कहूंगा आपसे, सुन्नी हनफी बरेलवियों में भी जाके बैठो कि वो अपने नबी की शान व अजमत कुरान और हदीस से ही करते हैं या कुरान और हदीस के खिलाफ, ठीक है? और फिर वहाबियों में भी जाके बैठो, वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं। अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो आपकी तारीफ करूंगा, आपकी तौहीन नहीं करूंगा, आपकी बुराई नहीं करूंगा। समझ में आ रही है वकील साहब बात? अच्छा मैं आपके मुवक्किल की बात कर लेता हूं। आपका मुवक्किल आपके पास आया, ठीक है, आप उसके वकील हो, वो आपका मुवक्किल है, आपके मुवक्किल ने आपको पैसा दिया और कहा कि आप मेरा ये केस लड़िए, मैंने एक को कत्ल कर दिया है और इस केस को आसानी से आप निपटा दीजिए, पैसा जितना चाहोगे उतना दूंगा। तो आप वहां जाके जो है उसकी वकालत करते हैं, ठीक है, और आप उस कातिल को बचा भी लेते हैं, रिहा करा देते हैं। अब वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है ना? समझ रहे हैं ना? हाँ, और यहाँ झूठ सच भी बोला जाता है, बिल्कुल, है ना? मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप वकील हैं, सिर्फ इसलिए ये पॉइंट समझा रहा हूं, समझे वकील साहब? सिर्फ आपको पॉइंट दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको ये बात कह रहा हूं, कभी आप सोचें यार ये मुझे ही कह जा रहा है। नहीं मैं क्या, वो तो जो भी, हाँ जो भी वकील है मैं सबको कह रहा हूं। तो आपने पैसे के खातिर उस कातिल की जो है वकालत की, उसके लिए आप लड़े और उसको रिहा करा दिया, चलिए ठीक है रिहा करा दिया, तो आपने उसको बदले, उसने आपको बदले में पैसा दिया जो आपका मतलब तय हुआ था। अब वो थोड़ा सा बढ़ती दे दे या कम दे दे, अगर वो कम भी देगा तो आप रख लेंगे, नहीं कुछ कहेंगे, और अगर वो तोहफे में खुश होके कुछ और भी दे दे तो ये ऐसा भी होता है ना, तोहफे में भी दे देते हैं, होता है ना? मिला है कभी आपको तोहफा? मिलता रहता है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा नहीं होता और मजबूरी आ जाती है तो कम भी देते हैं, वकील साहब ये हैं रख लो यार, बात तो इतने की हुई थी पर नहीं है, मजबूर हूँ।
हाँ, तो दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं ना। सब तरह के लोग। मैं अपने नबी के लिए लड़ता हूँ, मैं अपने नबी की वकालत करता हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं उनका कलमा पढ़ता हूँ, उनसे वफादारी करता हूँ। समझे भाईजान? जी। मैं एक मोमिन हूँ, इसलिए अपने नबी की वकालत करता हूँ, अपने नबी के लिए जानो दिल से हर बदमज़हब का मुकाबला करता हूँ, दिलो जान से, और मैं किसी की धमकी से भी नहीं डरता हूँ। वैसे बहुत सारे इनके लोग आते हैं, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैं कहा जो तुमसे हो सके वो कर देना। मेरी मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि मेरा वक्त ना आ जाए, बिल्कुल। जब तक मेरा रिस्क पूरा ना हो जाए। समझे भाई वकील साहब? जी। हाँ, बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश करूंगा। मैं बताना तो कुछ और चाह रहा था यहाँ पे, पर आप कह रहे हैं मुझे कुछ काम है। अच्छा, अभी अदालत में है या बाहर है कहीं? जी अदालत में होता सुनने करता। जी 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 जी, घर पे हैं। चलिए, आपका कोई काम होगा इसलिए आप रुके होंगे। तो जी, सफर में। सफर में है? हेलो, हाँ, सफर में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि कितनी बेअदबी की बात है कि अंबिया इकराम की शान में तौहीन करना, और जर्रा बराबर अंबिया इकराम की शान में तौहीन करना ये कुफ्र है। मैं सिर्फ आपको अच्छे अंदाज में प्यार से इसलिए समझा रहा हूं कि आपकी इस्लाह हो जाए। जो नबी का होगा वो नबी की वफादारी करेगा, वो नबी की शान व अज़मत को बयान करेगा, अपने नबी के शान व अज़मत के खुतबे पढ़ेगा, है ना? हेलो हेलो हेलो। जी वकील साहब, तो हाँ, तो जो नबी का होगा वो नबी की वकालत करेगा, जो नबी का होगा वो नबी की शान व अज़मत के खुतबे पढ़ेगा, और जो नबी का नहीं होगा माज़अल्लाह, तो वो फिर उसका बेड़ा भी गरक है, और वो हमारे नबी की शान में तौहीन करेगा। वो हमारे नबी के कमाल को तस्लीम नहीं करेगा, वो हमारे नबी के कमाल को हर तरह से घटाने की कोशिश करेगा, मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा वो कोई भी हमारे नबी का कमाल। वहाबी देवबंदी कहते हैं माज़अल्लाह के हुजूर सिर्फ बशर है, नूर नहीं, और कहते हैं कि तुम नूर साबित कर दो, मगर कुरान पाक से साबित है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, मगर वो लोग मान के नहीं देते। यहां तक कि उनके बड़ों ने भी लिखा है, वहाबियों और देवबंदियों के जो बड़े हैं, जो इनके बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया। सारी कायनात से, हर शय से, हर चीज से पहले हमारे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया, फिर हमारे नबी के नूर से सारी कायनात को पैदा किया। यहां तक कि जमीन, आसमान, फरिश्ते, हर चीज, यानी कायनात की हर चीज को हमारे नबी के नूर से पैदा किया अल्लाह ताला ने। समझे भाई? हेलो हेलो। हाँ बोलिए। जी वकील साहब, तो ये लोग हमारे नबी को नूर मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं वो नबी तो हमारी तरह बशर हैं, जिस तरह हम खाते पीते हैं इसी तरह वो खाते पीते थे, जिस तरह उनकी हमारी शादी ब्याह होती है इसी तरह उनकी भी शादी ब्याह हुई, जैसे हमारे बीवी बच्चे हैं ऐसे उनके भी बीवी बच्चे थे माज़अल्लाह। बताइए, अरे हमारे नबी की बराबरी करने चल रहे हो? मई जून की गर्मी में तुम्हारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि इतनी बदबू आती है तुम्हारे पसीने से कि लोग घिन खाते हैं, माँ और बीवी भी घिन खा जाती है कि नहा तो लो जाके, इतनी बदबू आ रही है। मगर मेरे नबी का जो पसीना है ना, वो इत्र से ज्यादा महक और खुशबू वाला है। मेरे नबी के पसीने को लोग अपने घरों को ले जाते थे। समझा? मेरे नबी की बराबरी करने चले हैं। अरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन फर्श पर बैठे बैठे अर्श के चांद के 2 टुकड़े किए, बिल्कुल, सूरज को वापस पलटाया। तुम तो जरा करवा के देखो ना। बहुत सारे मौके हैं आपके। हाँ, बस मैं शॉर्टकट में एक बात कहना चाहूंगा कि सुन्नी हनफी बरेलवियों के पास भी जाके बैठो। हाँ, तो मैं बैठता हूँ, ऐसे हमारे सामने कोई बात नहीं आती, वो इनकार करते हैं अल्लाह के नबी का है, अल्लाह का। देखिए, सिर्फ आप वहाबियों में जाके बैठे हो, अहले हदीसों में जाके बैठे हो, ठीक है,
اور وہ آپ کو اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں. جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اگر میرا کوئی ایک حوالہ غلط ہو جو میں نے بتایا ہے آپ کو اور وہ آپ کی کتابوں میں نہ ہو تو جس طرح سے چاہیں آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں. آپ پیسے سے وکیل ہیں اور میں آپ کی متعین کی ہوئی سزا کو خوشی سے قبول کر لوں گا. جو آپ طے کریں گے, جو آپ میرے لیے بتائیں گے, ٹھیک ہے, خوشی میں اس کو قبول کر لوں گا. مگر دوسری شرط میری بھی ہے, اگر میں نے حوالے آپ کو صحیح بتائے ہیں, ایک بھی حوالہ غلط نہیں ہے, سارے کے سارے سچے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو سچے دل سے میرے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا چاہیے. وہ ڈال کے رکھا ہوں نہیں ڈالے ہو. اگر آپ نے میرے نبی کی غلامی کا پٹا اگر ڈالا ہوتا تو پھر وہابیوں اہل حدیثوں کی وکالت نہیں کرتے. بس نہیں, بس تھوڑا عمل میں سستی ہے, نہیں تو دل سے اللہ کے نبی کو مانتا ہوں. دیکھیے سنیے بھائی جان سنیے, آپ اللہ کے نبی کو مانتے ہو تو بتائیے علم غیب ہے حضور کو نہیں ہے؟ پھر وہی بات کہ عالم نہیں ہوں. ہم سنیوں کا بچہ بتاتا ہے کہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا, ہمارے نبی کو اختیار عطا کیا. ہمارے نبی نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں, سمجھے, ہمارے نبی حاضر و ناظر بھی ہیں, سمجھے جناب وکیل صاحب. جی اسرار احمد انصاری صاحب نام بتایا تھا نا آپ نے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی یار ڈھنگ سے ادھر سے. مائک شاید دور ہے آپ کا. یہ گاڑی راستے میں گزرا ہے, جنگل میں سے گزر رہا ہوں تو تھوڑی آواز کٹ رہی ہے. اچھا تو چلیے پھر بعد میں بات کرنا, کبھی اگر کرو تب کر لینا, نہیں تو ورنہ مت کرنا. ہاں انشاءاللہ کبھی. ٹھیک ہے.